the very first episode of our talk show. And today, our very first guest is Mr. Yashwant. Yashwant. Yes, Yashwant. Hi, how are you? I'm fine, thank you, sir. Good morning, sir. Yes, very good morning, very You, good. Okay, so let's quickly begin with our quick talk show. The very first question I would like you to please introduce yourself to our viewers over here. okay. My name is Yashwant Anchalia. I am from Kolkata. My highest qualification is BCom. I did my BCom like in the Andhra University. Just I came out and just started my internship from this and ARM. This is my first internship from ARM, Ananta Resource Management, as an accountant role. While joining at like I don't know what is this the first stage of like what we have to do after the BCom. Then most of the confusion will be there. No, they'll be like what have to do it after BCom. Yeah, what is the next step? So like I thought of doing first internship like we're getting the first step how we behave. I behave like knowledge about the how the practical knowledge I wanted. This I have joined this ARM, so it is like best. Like I got the best internship here. I've got the team also. Work with the team and work with my colleagues, all the people. Great, great, Yashwant. Okay. Thank you for a great brief introduction for our viewers. So let's move upon to our first question. So I would like you to please talk about your experience at Ananta in this specifically with the account internship, how you really learned in this internship, what was your experience in this internship, and how this internship, this experience which you gain in this internship is helping you out in your domain, in your accounts domain. Okay. It is like when I started my this internship, like I don't know the detail, like there's so many software I've learned in this ARM. Before joining ARM, I don't know the single what is like Microsoft Teams, how it works, what Microsoft To Do. I didn't work anywhere in this platforms. There's so many platforms I didn't work. After joining ARM, I've I have learned so many things. I don't know what software I have learned. I've listed out that like Microsoft Teams, Microsoft To Do, Microsoft Outlook. Then we have then accounting software like Tally, ZoBook. I think ZoBook's the main that is the on worldwide online platforms. That is the most needed platforms the Mhm. that is Zob and the Excel like the database management like Excel I didn't learn like before that the college they didn't that Excel was also the most important thing. Mhm. Then we go into further as also like we have GST in the ITR returns. I've learned Mhm. so many things from this one. There's so many apart from this accounting software like we have some different one like Fireflies Okay. business canvas model. Then we have like Canva, how to present the day, present how to presentation like when we given a topic, how to present that topic. Also, we have like Canva using the Canva presentations also. Mhm. So like we have the so many topics, so many software I have used in this internship. I got exposed to every software, and still they need to be learned. Like there are plenty of software in this world, but like still need to be learned. Okay, okay, great, Yashwant. I could hear a lot of softwares you have been working in this internship. So, proceeding ahead, I would like you to mention a brief Uh, detail about these softwares because I can hear some softwares are for your presentation, some were with respect to the accounting, GST, and Tally. So, could you please brief out a little more about these tool and some uh, sort of specific category that in accounting segment, which tools and softwares you used, and with respect to your presentation. So I believe your interpersonal skills also got developed in this internship. So which tools you used over there? So few names out of these segment that would help a lot to our viewers. तो आप ये जो tools आपने जो सीखे हैं तो अगर थोड़ा सा नाम के हिसाब से अगर आप ब्रीफ आउट कर दोगे कैटेगरी वाइज तो वो जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको बहुत हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड मच बेटर कि किस टाइप के टूल्स आपने अकाउंटिंग में यूज किए और इस इंटर्नशिप में किस किस सेगमेंट पर फोकस किया जाता है फॉर एन इंटर्न. okay.
अगर अगर जैसे कि अकाउंटिंग के लिए देखें तो अकाउंटिंग के लिए देख हम लोग लाइक टैली है फर्स्ट, लाइक जो बेसिक जो मोस्ट ऑफ दी जो स्मॉल एंड स्केल बिजनेस होती है वो यूज़ करती है टैली। करेक्ट जब करेक्ट। अब जो स्मॉल एंड मीडियम से जो मीडियम और मीडियम स्केल की जो बिजनेस होती है जैसे जो बुक या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं वो भी यूज़ करती है। तो अब हम लोग अनंतर रिसोर्स में टैली, एक्सेल, टैली एक्सेल भी हम लोग एक्सेल भी यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के लिए, पर हाँ ज़्यादा हाँ। यूज़ नहीं होता। हम लो जो बुक में ज़्यादा जो बुक इज लाइक जो बुक तो पूरा पूरा एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे जो बुक में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग एक्सपोजर्स है, जैसे कि जो बुक, जो फाइनेंस, जो एक्सपेंसेस, जो ट्रैवलिंग समथिंग बहुत सारे जो सब्सक्रिप्शंस, लाइक इट हैज़ सो मेनी जो ओ का एक पूरा है। तो उसमें आप लाइक हमको बहुत कुछ करा दिया उसके अंदर। एक जो बुक हम लोग जो बुक किए, जो इन्वेंटरी किए, जो एक्सपेंसेस किए, जो ओके। सब्सक्रिप्शन किए, जो फाइनेंस किए, एंड टैली एक्सेल एंड this is the like we have learned in this in the ARM. ग्रेट ओके। And सो when we going to the other part, like when we go to other part of this like accounting को छोड़ के, like when we learn about this Microsoft Outlook or Microsoft, what is Microsoft Teams, then ओके। Microsoft To Do, then different Fireflies, then business Canva model, then we have like uh, then we have like different just different software also, like we don't we have uh, yeah, we have like this Google well-being also. ओके So ग्रेट that ग्रेट। we also read down. And we have a group discussion about this project. Like we have a team that will also every weekend will be like we have a group discussion on any of the one of the software, any of the tech social activity. Big group discussion about the what is the consequences, what is the advantages. We'll be discussing about this also. We'll be learning from that also. We're discussing from the teams also. Okay, So that's okay. all. Oh, great, great. So it seems to be that you had learned a quite good lot of softwares in this internship. और उन softwares को वो सिर्फ account specific नहीं रहे, वो आपके activities to socialize yourself and to present yourself, all those kind of softwares वगैरह। तो मैं एक और question इस चीज पर थोड़ा सा focus करना चाहूंगा। तो ये जो यशवंत आप ये जो ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे थे, जहां आप आपके ग्रुप के साथ और टीम के साथ सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस Hmm. करते थे, तो ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपने सीखे, ये आपका टाइम स्पैन कितना था इस इंटर्नशिप में? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इनटू दिस इंटर्नशिप? टाइम स्पेंड तो ऐसे कभी भी तो ज़्यादा देर चल जाता था। मेरे को लर्निंग्स में डिपेंड, मेरे को लर्निंग्स करना था। जैसे कि 8 आवर से ऊपर भी चला जाता था। मेरे को सीखना था, वो मेन फोकस था मेरे को। 8 घंटा मेरे को लाइक 8 घंटा 6 घंटा मेरे को ज़रूरी नहीं था। उनका लाइक एआरएम का जो लिमिट था, उनको आधी घंटा हमको करना है, आधी घंटा 1 घंटा। पर मैं उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को जहाँ तक मेरे को पूरा कवर अप करना है, मेरे को जैसे उस सॉफ्टवेयर का लर्निंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो मेरे को जो कि जब मैं जिसको प्रेजेंट करूँगा, कि उनको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ है, क्या चीज़ है, क्या है। एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, जैसे उसको पता होना चाहिए सब कुछ। तो मेरे को नहीं, लाइक मैं उसमें कभी काउंट नहीं करता टाइमिंग्स, तो कितना मेरे को कितना लगा, इट गोस अप, बट लाइक आई लर्न सो मेनी थिंग्स, लाइक आई डोंट वांट लाइक टाइमिंग्स। ग्रेट 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 क्वेश्चन। सो इट वाज मोर मेजरली आप आपके डेली बेसिस के टाइम के ऊपर आपने बताया था। समटाइम्स वो 8 घंटे से ज्यादा भी चले जाते थे, समटाइम्स वो आप टाइम नहीं नोटिस करते, करेक्ट? बट आपने ओवरऑल इस इंटर्नशिप में कितने टाइम स्पेंड किया? आपकी इंटर्नशिप कितने महीनों में पूरी हुई है, ऐसा दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। कितना टाइम ओके, लगा आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करने में? इसको मेरे को इंटर्नशिप करने में लाइक 4 महीना लगा। ओके, लाइक सो इन चार 4 आवर्स, ओके, आप बोल रहे हो कि 4 मंथ में आपने मिनिमम 8 आवर्स टू 9 आवर्स कुछ आपने इन्वेस्ट किए और उसमें इतने हाँ, सारे टूल्स सीख लिए। हाँ, दैट इज रियली क्रेजी, करेक्ट यशवंत? या सो अब ये जो 4 महीने थे, अब आई बिलीव कि इतने सारे टूल्स के साथ आपने कुछ और वर्किंग एक्सपीरियंस भी गेन किया है यहाँ पर, और भी जो बिसाइड दीज टूल्स आपने और कुछ एक्सपोजर किया है। तो ये जो टूल्स वाला पार्ट है, ये जो टूल्स सीखना था, तो ये किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है? मतलब आप स्पेसिफिकली सिर्फ टूल्स पर फोकस करते हो पूरा 1 1.5 महीना, या फिर किस तरीके से ही होता है? कोई स्पेसिफाइड सेशंस रखते हैं आप लोग इस इंटर्नशिप में,
जिसमें आप सिर्फ टूल पर डिस्कस करते हो, लाइक हाउ यू डिड ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ और कौन से सेशंस होते थे जहां पर आप टूल्स पर डिस्कस करते थे? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन भी अगर आप करते थे तो वो कितना लंबा होता था, एक दिन में कितना टाइम आप ग्रुप डिस्कशन को दे रहे हो? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। ओके, अगर जैसे कि टॉपिक, जैसे कि मेरे को टॉपिक, जैसे हम लोग को अभी जो बुक, हम लोग कोई और टॉपिक जैसे गूगल ड्राइव लिंक जाते हैं, जैसे कि हम लोग टॉपिक को पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं कि पहले प्रिपरेशन करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, फिर सारे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक नोट पैड में हम लोग लिख देते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या करना है, सब कुछ हम लोग नोटेट कर लेते हैं। फिर ओके। जो जो फिर जब सब कुछ हो जाता है, टाइम मिल जाता है कि हमको जब ये डिस्कस करना है कि क्या कैसे इसका 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 प्रॉब्लम और सोल्यूशन क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव इसका इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, ऑल्टरनेटिव ऐप है या नहीं, और सब कुछ है। तो हमको टाइम लगता है समथिंग, अगर प्रिपरेशन को भी टाइम लगता है, प्रिपरेशन समथिंग वो डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर के डिपेंड करता है, ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, समथिंग आधी घंटा या 1 घंटा लग जाता है। और जब डिस्कस करते हैं समथिंग, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, कि समथिंग उनका लाइक मेरे को लाइक मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स गया है, उससे ज़्यादा कोई नहीं गया। ओके। मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स गया है, उससे ज़्यादा कोई नहीं गया। पर उसमें लाइक सब कुछ इंटरेक्शन हो जाता है, सबसे बात हो जाती है, जो भी ग्रुप में होते हैं, लाइक ओके। उनका क्या परसेप्शंस है, उसका क्या व्यू है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबका पता चल जाता है। पर लाइक हम लोग लाइक नोटेट करते क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या है, सब कुछ वो हो जाता है। Oh, great, great. So this seems to be a very open-minded kind of discussion, correct? या ओके। सो यशवंत, ये हम कब से बात कर रहे हैं कि आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो, आपने ग्रुप में साथ में पॉइंट्स नोट किए और आप सीख रहे हो, तो हाउ बिग दिस ग्रुप वाज एक्चुअली? कितने लोगों के साथ आपने यहाँ पर काम किया एक ग्रुप में? हम असल में हमने 2 ग्रुप किए हुए थे, हम लोग दोनों ओके। मर्ज हो जाते हैं, समथिंग हाँ। समथिंग 9 हो जाते हैं। तो हम लोग नाइन नाइन 9। टीम्स, हाँ 9 टीम्स हो, समथिंग 9 पीपल हो जाते हैं। तो उसमें हम ओके। लोग डिस्कस करते रहते हैं, एक टाइम, जैसे कितना, जैसे कि एक जन को बोलना है तो समथिंग 1 to 2 मिनट्स, अगर उसको फिर से वाओ, 1 to 2 मिनट्स, वन नाइन टू टू मिनट्स पीपल, 9 people saying 1 to 2 minutes, that's great. So मतलब काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको एक व्यू मिलता होगा किसी एक टूल पर, हर किसी का एक अलग परसेप्शन और उनका एक अलग प्रॉब्लम, एंड एवरीबॉडी इज डूइंग दैट सेम टूल यूजिंग अराउंड। सो 9 people डूइंग अ ग्रुप डिस्कशन। सो हाउ डू यू सी दिस थिंग कि ये किस तरीके से डेवलप करता है किसी भी एक इंटर्न को या किसी भी एक पर्सनालिटी को ग्रो करने में? हाउ डू यू सी कि ये ग्रुप डिस्कशन विद 9 different people hearing out 9 different views about a tool or a problem and getting out a solution from this group discussion thing, तो ये कैसे डेवलप करता है किसी भी एक पर्सन को? वो जो जो जैसे कि एक जन बोलता है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, लाइक उस पर लाइक हम लोग उस पर लाइक जज करते हैं, लाइक उस पर लाइक हम लोग करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकाले। उस पर लाइक हम लोग को इंटरेक्शन, जो पर्सनल, जो हम लोग थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि ओके, उसमें ग्रेट। यस। प्रॉब्लम सोल्यूशन जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालो, लाइक हम ग्रेट। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सोल्यूशन होता है वो सब कुछ होता है। और प्लस इंटरेक्टिव, जो सबसे हम लोग को इंटरेक्टिव होना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए, सबसे लाइक हमको हमका अपना परसेप्शन रखना चाहिए और उनका बात सुनना चाहिए, लाइक एक तरह का पर्सन टू पर्सन एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसका इनका परसेप्टिव अलग है, तो एक तरीके का इंटरेक्शन हो जाता है। अगर चीज़ को हेल्प चाहिए तो पता चल जाता है कि इस आदमी को हेल्प चाहिए, तो लाइक एक ओके। रिलेशनशिप बन जाता है, एक फ्रेंडशिप बन जाती है कि वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन क्या अच्छा है, लाइक समथिंग उसका ओके, अलग है। तो ग्रेट, लाइक ग्रेट। सो वो यस आई, इंटरनेशनल, yes, yes, please carry on. Sorry, yeah, please carry on, Yashwant. तो लाइक उसे पता चल जाएगा कि जो इंटरेक्शन होना चाहिए, लेकिन सबसे ग्रुप में कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, दैट ऑल्सो लाइक हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू जैसे हाउ टू स्पीक, हाउ टू लाइक स्टेप बाय स्टेप स्पीक कैसे करते हैं, लाइक वन स्पीकर स्टॉप्स, अनदर स्पीकर कैन कंटिन्यू, then one like it goes on like this, and we can't like, we have some rules, like we can't like interrupt the other people's when speaking, like someone is speaking we can't interrupt that also. First have to complete that first speaker, then second speaker should speak. That is the like main, like
हैव टू लिसन एवरीथिंग फर्स्ट, हैव टू लिसनिंग सब कुछ होना चाहिए, फिर बात करना चाहिए, वो होता है। ओके ओके ग्रेट। सो आई कैन पॉइंट आउट, मैं आपके इस कंक्लूजन से ये निकाल सकता हूँ कि आपने एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है इस काइंड ऑफ इस तरीके के ग्रुप डिस्कशन से। आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एक डेवलप हो रहा है, एक लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है कि आप सामने वाले को पूरा सुन लीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, देन यू रिवर्ट बैक। that's pretty great यशवंत, करेक्ट? सो इट सीम्स दैट कि वो काफी अच्छा एक डेवलपमेंट हो रहा है आपके हिसाब से किसी भी एक इंडिविजुअल पे। ग्रेट ग्रेट। Okay, great. So moving ahead, Yashwant. So let's discuss about what kind of working experience you gain. किस तरीके के working आपका एक experience था? Beside the softwares and tool, आपने वो working experience कैसे gain किया यहाँ पर? क्या आप actual client data पर work कर रहे थे या फिर किस format में आपको वो working था, और आपको working knowledge यहाँ से क्या gain हुआ है in this accounting internship? एक महीना हम लोग को एक ट्रेनिंग था, जैसे कि हमको एक ट्रेनिंग हमको एक क्लाइंट का दे दिया था, और एक हमको टैली सॉफ्टवेयर जैसे जो हम लोग को टैली टू जो बुक करना था, तो Okay. हमको पता चल जाता है कि एक मिनट वो ट्रेनिंग हो जाता है, तो एक पता चल जाता है कि ये इस क्लाइंट का डेटा हमको जो बुक में डालना है, हमको पता चलता है वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, और हर एक सॉफ्टवेयर पता चलता है कैसे वर्क करता है। फिर नेक्स्ट मंथ से हमको रियल क्लाइंट का डेटा मिल जाता है, जिससे हम लोग उस पर वर्क करते हैं, जैसे कि हमको पूरा क्या क्या डिटेल्स या क्या क्या चाहिए, क्या क्या उसका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, ये इस सॉफ्टवेयर इसका जो पर्सन है ये क्या है, डेटा क्रिएटर है, सब कुछ पता चल जाता है। तो हम लोग तो उस बेसिस पर रियल क्लाइंट पे वर्क करते हैं। जैसे हम लोग को कभी भी हमको एक्सेल टू जो बुक, द जो बुक टू टैली टू जो बुक रिवर्स होता है, पर हमको सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि और क्या, और क्लाइंट डेटा जैसे कि हमको जैसे कौन सी एंट्री जाएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये सब कुछ पता चल जाता है, और जिसे हमको हेल्प चाहिए तो हम लोग कोलिग से बात कर सकते हैं। Okay, okay. So, based on your experience, I can say कि आपने एक महीने तो यहाँ पर ट्रेनिंग ली. So it was a quite good brief training, correct? On the softwares. Okay, great, great. So with the software, जब आपने वो actual client data पर work करना start किया, तो आपने basically उस client data पर क्या किया क्या है? आपने क्या उसको accounting की, ITR filing, what kind of work you did on that client data? What was your activity, or what was that client's requirement in that work which you did over here? क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जैसे कि उनका टैली जाकर टैली में देता है, तो हमको टैली में हमको जो बुक में डालना पड़ता है। हमको Okay. जो जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है टैली में, हमको फिर से उसको उस जो भी डेटा है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है जो बुक में, जो हमको पूरा वो जो पूरा पूरा उसमें चल रहा है, जो उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको पूरा अलग अलग है, हमको उसके हिसाब से पूरा मैचिंग होना चाहिए। टैली टू जो बुक जो अमाउंट है वो सब कुछ टैली होना चाहिए। So तो हम लोग basically जो it was kind of ट्रांजेक्शन, a accounting, correct? Accounting work for या the client. या Okay, या great, great, great. Okay. And with this accounting, आपने वो टैली का स्ट्रक्चर समझ लिया कि टैली में किस तरीके से एंट्रीज पास ऑन हो रही है, उसको जोहो बुक्स में कन्वर्ट करना है, तो दिस जोहो बुक्स आल्सो इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. यस यस Okay, great, great, great. So आपने Zoho books, and I heard about lot of things about this Zoho books. आपने Zoho books सीख लिया, inventory, Zoho finance, बहुत सारी चीजें with respect to this Zoho you had learned. Okay, that's great. So you did a kind of accounting work for a long period of time, for at least या 3 months. 4 महीने की आपकी इंटर्नशिप, एक महीना आपने उसमें डिफाइन ट्रेनिंग ले ली, ब्रीफ ट्रेनिंग, एंड 3 months you did accounting, correct? So I believe that you would be very prepared for any sort of accounting work. You can now do any accounting in the open market. Yes. यस आई एम यस आई कैन डू इट। And it has bring some sort of confidence also into you. I can see that. Yeah, that is it got full exposures of that client, what is the client is doing, and what is how to transfer this data into this Zoho book, that I Yes. got it. Okay. And anything, any transaction anything that comes from the I want to transfer, yeah, anything I have to do the transaction, I can do it from the Zoho book, yeah, from the Tally, any software I can do it. Okay. Okay. So I believe now you are completely confident about the transaction types, और उसको कैसे आप convert कर रहे हो उस data को into any softwares. That's great. That's great, Yashwant. I can see that confidence into you right now. आप बस अभी आपको accounting work दे दे तो अभी करके भी दे देंगे.
Demo basis. Yes. Great, Yashwant. Great. Okay, so let's move ahead. And before talking to you, I talked to your seniors as well, your team leaders, and मुझे पता चला आप किसी type के workshops में भी involved होते हो. Being an intern, you are involved into certain workshops. So what kind of workshops these are? क्या टॉपिक होता है उस वर्कशॉप्स का और किस तरीके की वर्कशॉप है? थोड़ा बहुत आप अगर आप उस पर ब्रीफ आउट कर सको तो. जो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था, एक तो पर्सनल डेवलपमेंट था, एक तो पूरा अकाउंट्स रिलेटेड था, लाइक ओके. अकाउंट्स रिलेटेड था. तो फर्स्ट जो पर्सनल डेवलपमेंट जो हुए थे, गोल सेटिंग वर्कशॉप, जैसे कि हम लोग को गोल सेटअप करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है हमको. अगर पहले हमको जो हमको ड्रीम है, क्या बनना है, क्या क्या करना है, कैसे हमको एक एक स्मॉल, जो जैसे हम गोल को डिवाइड करते हैं, स्मॉल को, सब यूनिट्स को, सभी ऑब्जेक्टिव, उसका पूरा सब गोल्स, उसका पहले स्टेप क्या होना चाहिए, वो सब हमको पता चलता है गोल सेटिंग वर्कशॉप में. और पहले हमको जो जो मेन पर्पस होता है गोल सेटिंग का वर्कशॉप को, आप प्रेजेंट करो या लिखो. ओके. तो हमको लिखने से सब होगा, नहीं तो हमको बोलने से कुछ नहीं हो, बोलने से कुछ याद नहीं होगा. तो मेन ऑब्जेक्टिव वो था कि आप करो, कुछ लिखो, कि कोई प्रेजेंट करो, बिजनेस कैनवा प्रेजेंटेशन में आप प्रेजेंटेशन बनाओ, या पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन, आपका क्या क्या गोल है. जैसे गोल्स में लाइफ गोल, पर्सनल गोल, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, बहुत सारे गोल्स है, हेल्थ गोल्स है. तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट गोल्स में हम लोग कर दिए. तो हमको क्या क्या करना है, कौन सा गोल है, वो सब कुछ वो बता दिया. उसको प्रेजेंटेशन बनाओ, उनको कैसे मेंटेन करना है, वो सब है. नेक्स्ट है. That sounds really great, Yashwant. So you that means आपने इस internship में people are talking about yourself, your own development. You yourself are talking to yourself, correct? कि आपको short term goal, interpersonal goal, life goals, whatever goals you had, you are really focusing on that. It sounds really amazing, Yashwant. Okay, yeah, please proceed ahead. And the other workshops which you were talking about? Next workshop is accounting related to GST, TDS, how to return GST, return TDS. That's a workshop. That's a small workshop, 1 hour, that's 1 hour. How to GST, what is GST, how to do it, how to file. That's written. Next workshop is TDS, how to it works. There a number of sections in the TDS, how to then how our details gets deducted from the income now by paying to someone else, that is the main that one. Then next we have ITR returns, income tax returns, that we are filing yearly returns, yearly returns. After 1 year you have to pay a tax to the government. How we different, they have different ITRs, ITR 1, ITR 2, ITR 3, for the business, for the partnership, different forms they have, how to file this one. So these are the workshop, it goes up to something, it goes something some 1 week, this one workshop goes goes to 7, 1 week, it went to 1 week. Next the TDS and GST went to 2 to 3 days. 2 to 3 days Okay. workshop is completed. That's that is the most accounting and personal development high board. These are the Okay. I have attended. Great, Yashwant. So I heard that you did in sort of accounting workshops. You did GST, TDS, then ITR filing, and That is the 3 things I have done in the oh, workshop. great. That's Okay, yours. so these three. So I believe ये accounting के कुछ तीन बड़े concept हैं. GST very new concept we had. TDS एक बहुत Yeah, बड़ा yeah. concept है. ITR filing एक बहुत बड़ा concept है. Yes. तो इन तीनों concept पर आपने एक अच्छा grip यहाँ से in through using these workshops, through going through these workshops, आपने एक उस पर एक अच्छा grip हासिल कर लिया, correct? हाँ. And so ये जो GST का workshop था, how I heard that it was just for 1 hour or 1 hour for a day it was. How long it was? It was 2-3 days. Either 2 or 3 Okay. days, I don't remember. It is 2 to 3 days. Okay. 1 hour per day. 1 hour per day. In GST, what is GST? What is what it is has gone to different parts. It has what is GST? Then what is how which applicable states are there? Which not Okay. applicable states can apply this one? Then we have interstate and intrastate of supply. Okay. Goes into deeps and it goes so many, and we have calculations also, how to calculate GST. Then we have different rates of each and every product of rates. Some are Okay. there, some of the products are related, exempted.
we have that one. So like we have went to this GST model for like 2 to 3 days somewhat. Like we got something exposures about this one. So we have like in this we have the GSTR 1, 2, 3, 4. Like they are sub five for filing GSTR 1, 2, 3, 4. There are so many. There are like filing returns like over the outward supply, yeah, inward supply. Then we have like interstate supply and outward supply. Which return have to be filed. That is the like we have given. ग्रेट 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 सो आई बिलीव आपने एक जीएसटी के 2 to 3 days के वर्कशॉप्स में you had discussed a lot about GST and that same goes for TDS also. TDS like it is going to the 4 days. Okay. I have noted that one 4 days. Okay. TDS in that like what is TDS and what we have like how our salary gets credited from like this how our salary gets deducted from the TDS, how much percentage Okay. gets TDS there when we giving the rent to the other persons, when giving the rent to the other persons also. So we have to pay to the government the TDS, then we'll get then we have to deduct from the TDS and then we have to pay the rent. Like there are n number of transactions in that. Okay, great, great. So N number of TDS was kind of थोड़ा सा बड़ा part था workshop का. It went हाँ for 4 days and you remember at least 4 days and it was somewhat more than 4 days it can go, correct? And या ITR filing में मैंने शायद आप जब तक जो मैंने सुना है आपने शायद ITR filing practically you had did that ITR filing वाला part थोड़ा बहुत आपने उसको practice वगैरह किया है? हाँ लाइक थोड़ा बहुत किया है, लाइक थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया जितना दोनों उन्होंने जो सीनियर जो वर्कशॉप कराए थे उन्होंने कराया, जो कि लाइक इनका जो वर्कशॉप था थोड़ा बहुत लिमिटेड था. तो Okay. अगर थोड़ा एक्सपेंड होता तो तब लाइक थोड़ा एक्सटेंड डेज हो जाता तो हम लोग और भी जैसे कि ITR 7 तक है अपना. Okay. ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर थोड़ा Okay. बहुत ITR 1, 2, 3 थोड़ा एक्सपेंड करके बढ़ाते तो लाइक हमको पूरा एक्सपोजर मिल जाता है पूरा ITR का कि कैसे रिटर्न बढ़ते हैं. हमको लाइक थोड़ा बहुत पता है कि वो थोड़ा. Okay, so that means due to the limitations of the access to these workshops, आपको वो एक limited knowledge मिला, but in that limited workshops also you get to know more about ITR और एक हल्का सा आपको एक practical exposure मिल गया कि ITR filing किस तरीके से होती है और करनी है, correct? Okay, great, great. That's also sound great. So yeah, so coming towards the end, Yashwant, so I would like to know कि आपका ये एक overall जो experience था, this seems to be very fruitful to you. So being an intern over here, being and a person who is learning something new, very first internship you did with Ananta. So how you recommend interns over here? How you see कि ये जो एक ये जो internship का ये जो structure है, ये किस तरीके से interns को develop करने में help करेगा और आप इसको किस तरीके से recommend करते हो? कोई भी आपके जो फ्रेंड्स हो जो आपके एक सेम एज के हो या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हो जो अकाउंटिंग में अपने करियर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सो हाउ यू रिकमेंड देम एंड based on your experience how you recommend that this internship, this structure of internship to those people? पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि लाइक टाइम के हिसाब से मत चलो. लाइक तुमको आपको लर्निंग्स पर लाइक पूरा फोकस करो. लर्निंग जितना आपको जितना एक्सेस मिले आपको उतना यूटिलाइज कर लो, जितना फ्री मिले आपको यूटिलाइज कर लो कि कितना आपको बस लर्निंग आप सीख लो. कौन सा सॉफ्टवेयर है वो सीख लो, जितना जल्दी सीखना सीख लो. पहले लर्निंग्स पर. और जितना लाइक वो कोई लोग जो मेरे एज के रहेंगे, कोई लोग स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग लाइक समथिंग मनी के ऊपर जाते हैं. मनी इज लाइक इंटर्नशिप में कितना पैसा मिल रहा है, कितना चल रहा है, वो उसके ऊपर चलते हैं. तो लाइक वो लोग खाली मनी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लर्निंग्स कम हो जाता है और बस वो लाइक उनको बस कैसे भी इनको इंटर्नशिप खत्म करना है. तो लाइक मैं सजेस्ट करिए आप लर्निंग्स पर फोकस करो. टाइम जाने दो, टाइम जाएगा पर लाइक पैसे के लिए इतना नहीं करो. लर्निंग्स पूरा डिपेंड करो. और अब जैसे इंटर्नशिप में क्या होता है, इसमें एरा में इंटर्नशिप में किया था 600 समथिंग लाइक फर्स्ट आवर 600 आवर्स हमको कवर करना पड़ता है. तो लाइक मेरे को हमको लिमिटेड टाइम दे दो, आपको ये वर्क आपको ये इतना वर्क करना है, इतना वर्क करना है. आप थोड़ा सा एक्सीड करो कुछ नहीं होगा. अब बस आपको पूरा 100% एफर्ट डालना है कि आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाए. लाइक आपको एक जो आपने कमिट किया है वो होना चाहिए एक बार. आप उसी दिन में होने को निकले लाइक कोशिश करो लाइक 100% होना चाहिए उसे कमिट करने के लिए वो सब.
और नेक्स्ट थिंग लाइक आपको लाइक लर्निंग्स रोज रोज लर्निंग्स आपको सीखना पड़ेगा, न्यू न्यू थिंग्स आपको, न्यू थिंग्स आपको जैसे पुराना चीज कल जो सीखे थे वो चीज़ नहीं आज नहीं सीखना, आपको नया नया चीज, जैसे कि आपने एक चीज आपने ये चीज सीख लिया, आप नेक्स्ट डे आपको और कुछ नया सीखना है, आपको लाइक प्लान टू प्लान करना पड़ेगा। जो हमको गोल सेटिंग वर्कशॉप में जैसा होता है कि आपको जैसे कि आपको नया प्लान बनाते रहना है, जैसे कौन सा अगर एक प्लान खत्म हो जाए तो दूसरा प्लान उसी इमीडिएटली बनाते रहना है। आपको जो कंटिन्यू प्रोसेस आपको लर्निंग चलता रहेगा, आपको लाइक समथिंग बिजी रहेंगे एक चीज़ के ऊपर, तो लाइक आपको आगे में जाके कोई लाइक थोड़ा फायदा होगा नहीं। Okay, great. That's all like I've given to this whoever joined in this like first internship, anyone who's going to join. Thank you for your valuable time over here, Yashwant. And I believe कि आपकी ये जो experience था, this has given some sort of good things to you, और आप ये experience share कर रहे हो आपके classmates के साथ, और I can say आपके टाइम जोन वाले पीपल के साथ आप उसको शेयर कर रहे हो, और आप आपका वैल्यूएबल इनसाइट लोगों तक पहुंचा रहे हो. That's really great, Yashwant. And before ending this thing, one final question from my end. मैंने अभी जस्ट सुना कि आपने 600 आवर्स के बारे में मेंशन कुछ किया, तो ये जो इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर है, वेरी इन वेरी फ्यू वर्ड्स, इन सिंपलीफाइड मैनर, आप बता सकते हो इंटर्नशिप स्ट्रक्चर किस तरीके का था? ये 600 आवर्स का क्या सीन है, एंड पर डे आपका वो जो इंटर्नशिप था वो किस तरीके एक स्ट्रक्चर में जो होता है वो किस स्ट्रक्चर में बेसिकली फॉल होता है, योर पर डे इंटर्नशिप, एंड हाउ लॉन्ग दिस इंटर्नशिप, ये जो 600 आवर्स है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो तो? जब लाइक इंटर्नशिप लाइक 600 वर्स का होता है, जैसे कि 800 पर डे होता है, जैसे 800 में पर डे हम लोग काम करते रहते हैं। 800 में हम लोग को तीन घंटे का 3 घंटे का मीटिंग होता है, जिसमें 3 घंटे की मीटिंग मीन्स लाइक लर्निंग्स होता है, जिसमें Okay. लर्निंग्स हो जाता है, लर्निंग्स होता है। जब फिर डे टू जो डाउट्स होते हैं हमको, जो अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर डाउट्स होते हैं वो सब कुछ हो जाता है। फिर एक प्रेजेंटेशन भी होता है। अगर कभी भी 3 से 4 घंटे भी हो जाती है मीटिंग समथिंग, अगर ग्रुप मीटिंग करना चाहता है, ग्रुप मीटिंग्स लाइक अगर कोई एक टॉपिक पर डिस्कस करना है, लाइक सब कुछ करना है, लाइक सब कुछ मिल जाते हैं वो सब कुछ, लाइक समथिंग 3 to 4 आवर्स मीटिंग हो जाता है एक तरीका। तो Okay. नेक्स्ट जो 4 घंटा या 7 घंटा मिलता है, उसमें 3 घंटा हम लोग अकाउंटिंग, जैसे जितना अकाउंटिंग वर्क दिया है उसमें हम लोग डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई थोड़ा पेंडिंग काम हो, अकाउंटिंग का काम नहीं हो रहा, लाइक उसमें स्टक हो जाए, तो हम लोग क्या थोड़ा लाइक एक्सटेंड कर सकते हैं उस पर हम लोग 3 घंटा। नहीं तो अगर नहीं होता फिर हम लोग लर्निंग्स में चले जाते हैं। अगर लर्निंग्स डिफरेंट लर्निंग, जैसे कि Okay. आपको इस सॉफ्टवेयर को पकड़ना है, इस सॉफ्टवेयर को टूल सीखना है, या एक Okay. फर्दर मोर उसके डीप में जाना है, या वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो कोई भी। Okay. तो हम लोग को एक लर्निंग्स जो लास्ट 2 घंटा या लास्ट जो बचता है वो सारी लर्निंग्स में चला जाता है। तो हम Okay. लोग को ये पूरा 8 आवर्स का स्ट्रक्चर होता है, हमको डेली हम लोग को करना पड़ता है। तो समथिंग अगर 800 समथिंग महीना में समथिंग 200 लाइक पर मंथ 200 हो गया। Okay. टू So हंड्रेड टू it हंड्रेड is 8 hours a day. You normally you did your internship 8 hours a day and 200 hours per month, and ये 200 hours के structures में कुछ 3 months के लिए divided है. Okay, great. So it seems to be काफी busy schedule रह चुका होगा आपका. 8 hours being into an internship, plus you have your own college or classes, whatever going around. Being an intern, you are currently a student also, correct? So काफी busy schedule हो चुका होगा आपका, तो फिर ये 600 hours यहाँ invest करना, आपकी personal life है वहां पर, आप colleges, classes are going around, and then you need to get your time for yourself. So आपके 4 महीने तो काफी हेक्टिक होंगे फिर ऐसे तो. नहीं, ऐसे हेक्टिक तो कोई ये हेक्टिक नहीं बोल सकते, हम लोग चैलेंजेस बोल सकते हैं। हमको Okay. चैलेंज होता है कि हमको ये कंप्लीट करना है, और जैसे हमको पूरा लर्निंग भी करना है। हेक्टिक तो लाइक समथिंग नेगेटिव वर्ड हो गया, हम लोग चैलेंज बोल सकते हैं। Okay, तो so it चैलेंज was these 4 months was चैलेंज challenging for you. Okay, या great. लाइक हाउ टू पता चल जाता है कैसे मैनेज करना है, कैसे पर्सनल लाइफ और वर्किंग लाइफ को कैसे मैनेज करना है, वो पता चल Okay. जाता है। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे में ये भी आपने सीख लिया कि कैसे आप आपके वर्क लाइफ और
पर्सनल लाइफ को एक बैलेंस ला सको. That's great यशवंत. सो वेरी फ्यू फाइनल वर्ड्स. आपके जो टीम लीडर थे, आपका जो टीम था पूरा यहाँ पर, आपके वो जो टीम लीडर्स थे, वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट था जो आपके टीम लीडर्स और आपके टीम ने यहाँ पर बनाया, हाउ वाज दैट? हाउ गुड वाज दैट? इट वाज वंडरफुल. हेल्पिंग थे, सबको ही हेल्पिंग थे. हर सबको कोई हेल्पिंग हेल्पिंग. थे, जो ओके, हेल्पिंग ग्रेट. थे, जिसको डाउट किया था हम लोग को फोन लाइक they have to message like I have it out this topic explain me. So हम लोग लाइक उसी टाइम आ जाते थे कि हम क्या डाउट है, उसी टाइम सॉल्व करके चले जाते थे. लाइक और कोई डाउट हो तो लाइक कभी लाइक हमको समथिंग 11 बजे 12 बजे भी डाउट आता था, तो हम लोग को उसको सॉल्व करके चले जाते थे. ग्यारह जिसको 12 बजे भी आप लोग डाउट्स डिस्कस करें तो सो दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन, यशवंत इज रियली ग्रेट. सो मतलब सिर्फ आपके एंड से नहीं, वो पूरी टीम के एंड से टीम, था वो वो टीम के डेडिकेशन. एंड से, वो Wow, टीम के एंड से. that seems to be really great, Yashwant. That's really nice to hear कि वो एक पूरा टीम डेडिकेशन, वो एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, इस टीम ने क्रिएट किया है. and वो चैलेंजिंग आपके लिए जरूर बना है यहाँ पर थोड़ा बहुत, but that seems to be really nice, good experience. Okay, that's great, Yashwant. Really thank you for your valuable time over here. And I believe कि ये जो challenges आप यहाँ से, ये जो चैलेंजिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ से लेके जा रहे हो, somewhat this would be helpful into your further career, and ये kind of kick start दे सके आपको. So आप किस तरीके से, किस काइंड ऑफ इंटर्नशिप को, किस तरीके की इंटर्नशिप को आप देखना चाहते हो? बिकॉज दिस वाज योर वेरी फर्स्ट इंटर्नशिप. सो इस फर्स्ट इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस तो आपके लिए बहुत अच्छा था. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? मतलब नेक्स्ट लेवल पर आप किस तरीके की इंटर्नशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हो? How hard you can go with any internship, or are you focusing on to directly start a job? No, I'm like like starting from the learnings, like doing the CMA, like cost accounting. I'm studying. At, first, I like want to know about what is like, like in the current market we need Mm-hmm. something professional degree. So like we want Okay. something. I want to like crack on some like my this is my just education goal. This is my education goal. Like I want Okay. to secure some professional degree like CMA, cost Mm-hmm. accountant. I want to be cost accountant. Okay. So look, I'll be going like I'll go for accountant only. I'll go for like just for internship, like how it works and how it like will be like into like startups, like when we going in the internship. So like there'll be some changes in the accounting policy, something will be changing in the timing. So like we'll get to know like how to manage this timings, when how to manage this one timings and everything. Like we got in the like startup. So like when in the internship, the got changes everything every day, each and time will get changes. The time Okay. changes, Okay. the team changes, everything will get changes. So like I want to start like I want to go for internship only mostly, because there'll be lot of more learnings in the job. Okay. In the job, like we don't have like we have learned already. You have to apply that um, whatever you learned in the skills like in the internship, you have to apply to the job. That is the Okay. main. Like learnings like not come like there's still more to learn in this one. Still there's so many things I want to learn. Job Mm-hmm. I'm not thinking still now. Okay. Like first Okay. I'm looking for learning only. So how high are your expectations from the coming these internship? So like my expectation will be like they're focusing on learning, and like they'll be like only learnings. Like I don't want the stipend. Like I don't if I want like if I want to get the free for if I want to get the free like do I don't want to be like get paid. Just I want to work the for free also. I'll be working. Like this Okay. like for mainly on like I'll be internship will be should be like learnings only, not this much like about the meetings, all that one. Like mostly learnings have to teach and everything, how it works, how it works, like how to be professional, something will be more something. So like go for like that, like next intern should be that like only. Great, Yashwant. Okay, thank you, Yashwant. It was nice having to you over here, and it was nice to talk to you with respect to this internship and your experience in this internship. Thank you. Thank you. This internship has given them more learnings. Okay, that's great. Yeah.
So thank you everyone for looking out for this video and stay tuned for the next episode of our talk show.